Instagram is not the same anymore what it used to be earlier. एक टाइम था जब यहाँ पे हम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ शेयर करते थे. We used to share pictures, and then धीरे धीरे the Instagram became something where we started creating content. Also, it was a great place for celebs, for people who are famous. But nowadays, every people run towards the algorithm, and it's so messed up now. Real, true authenticity and real raw talks, I don't think it exists here in the Instagram anymore. The thing is that people nowadays are running towards the algorithm so much कि यार real रह भी नहीं सकते अगर चाहते भी है तो. And we have to feed people. Like पहले 3 सेकंड, पहले 2 सेकंड लोगों को हुक करके रखना पड़ता है कि तुम्हें वीडियो में क्या मिलेगा, वो पहले ही डोपामिन हिट लोगों को देना पड़ता है. And that's not how a real creator can stay real anymore. Like अगर हमें 3 सेकंड के अंदर ही लोगों को पकड़ के रखने के लिए अगर करना होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल हैव टू डू सो मच एक्स्ट्रा, सो मच हाइपर, कुछ फेक चीजें भी करना पड़ेगा फिर तो. इवन इफ वी समहाउ सक्सीड retaining people attention and we keep people watching for our content with the first 3-4 seconds anyhow. For example, मान लो मैं एक सिनेमैटिक वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट फिल्म, जहाँ पे मैं एक्टिंग वगैरह करके या फिर anyhow with my own art, with my own kind of scale, with my own genre, I try to show any story, any emotion of me, and मान लो उस पर 2 मिलियन व्यूज चला जाता है. That will only last for like maybe only for 2-3 minutes to any person. Like if somebody is watching your video, he's not staying on your video anymore. He will watch it, maybe he will rewatch it, maybe he will save or share, and then the person will swipe the video and he will move to the next video, and there will be some other content, and then in only a short period of time a person will be watching so much stories, like a lot of stories, a lot of content, a lot of feelings, and you are not staying in anybody's mind in real. Actually, you are just a short moment for people. It's like a game now, and I think I'm living Instagram now. Like all these years I was actively in Instagram and YouTube. बस अचानक शौक उठता था तो तभी यहाँ पे बनाता था. लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का उतना आदत है नहीं मुझे, और मैंने कभी लाया भी नहीं. आई वॉज ऑलवेज विलिंग फॉर इंस्टाग्राम, लाइक अपलोडिंग माई पोस्ट, अपलोडिंग रील्स, एंड आई हैड मेनी वायरल रील्स इन इंस्टाग्राम. माई हाइएस्ट रील, आई गेस इट क्रॉस्ड अराउंड 5 million, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ मिलियंस व्यूज वाले रील्स, बहुत सारे. सम यूज्ड टू बी सिनेमैटिक कंटेंट, सम यूज्ड टू बी रिलेटेबल रील्स, कुछ ट्रेवल रील्स भी होते थे, तो काफी सारे वायरल रील्स मेरे गए. बट आई एम नेवर सेटिस्फाइड विद दिस, बिकॉज आई नो हाउ आई डिड दैट. कुछ तो लक से चले गए, कुछ में अच्छा था, सच में अच्छा था, कुछ में करना पड़ा ऐसे. आई लेट माई सेल्फ like push and like research for the content कि यार अभी कैसे ट्रेंड में चल रहा है, क्या म्यूजिक चल रहा है, ढूंढना पड़ता है. एंड देन क्या कैप्शन दोगे ताकि तुम क्या लोगों को रख सको तुम्हारा रील देखने के लिए. एंड देन somehow I win in the fight, you know, like ऐसे बैंग रील्स आने लगे. जितना भी रील अपलोड करता था, like आज मान लो एक रील अपलोड किया, कल किया, परसों किया, एंड एवरी रील इज गोइंग वायरल. रील बनाने के चक्कर में मुझे भाग दौड़ करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एंड थोड़ा बहुत फेक होना पड़ता है. वो चीजें जब भी मैं हटाता हूँ एंड आई ट्राई टू बी रियल, खत्म. You get no views. It's like from 1 million suddenly 1,000 only. You know, just few days back my partner made a video while this CJP protest was going on. She had her own way of content, you know, like she wasn't commenting on anything, but for some precautions, and as she's a lawyer, she had some ideas to survive in this situation. कुछ legal points उन्होंने बताया जो कि she is a
न्यू क्रिएटर एंड सो आई एम द सेम. मेरे कुछ थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाते हैं जब भी कुछ रियल कंटेंट डालता हूँ तो like around 3,000 4,000, and she just made a new account, so we both collaborated it and then we posted. But what, it has only 3,000 views. Maybe there is not a concern that we got only 3,000. We were not expecting 10,000 even, but still that 3,000, what do you think, that 3,000, all 3,000 people watched the whole video? No, maybe only 30 to 40 people had watched it full, and it had something जो कि एक्चुअली फॉलो किया जा सकता था. बट आई डोंट थिंक कि लोगों ने इसको सुना, लाइक ट्राई भी किया होगा जो इसमें बोला गया है. द रीजन बिहाइंड इज दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर डोपामाइन हिट्स. पीपल आर नॉट एक्चुअली हियर इन इंस्टाग्राम टू क्रिएट सम इम्पैक्ट इन लाइफ और इन द सोसाइटी. Okay, I found this on the web for create an impact in life. Siri, I didn't say anything to you. The reason sharing this story is that कोई अगर नया क्रिएटर या फिर कोई किसी इंसान को अचानक कुछ बोलने का मन होता है, कुछ शेयर करने का मन होता है, and if that person comes here in the Instagram and try to say something, people are not gonna stay and listen. That's not a bad thing that तुम्हें यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, तुम्हें एडिट करना पड़ता है, तुम्हें थोड़ा सा प्रोफेशनल बनना पड़ता है. It's a good thing यार, तुम खुद को पुश करोगे. बट कोई अगर नया क्रिएटर होता है जो अभी बस नया नया आया है, उसके लिए फिर तो कितना ज़्यादा टफ हो जाएगा ना. बट दैट डजंट मीन कि यार कंटेंट क्रिएशन छोड़ दो, या फिर तुम्हारे मूड में अगर आ रहा है कंटेंट, या फिर अभी मैं सोच रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूँ, जो कि मेरा हमेशा से सपना था और इसमें मैं हमेशा से ग्रोथ करते हुए आ रहा हूँ. एंड आई स्टिल हैव अ लॉट टू गिव, अ लॉट टू डू. एंड आई थिंक, मुझे लगता है मेरे अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा और अच्छे से कंटेंट बनाने का, जो कि मैं अब तक नहीं कर पा रहा हूँ. एंड आई विल बी डूइंग दैट. आई नो आई एम मेड फॉर दिस, एंड आई विल बी डूइंग really great in this game, but in my way, by staying real and by doing how I want. And for that, मैं genuinely Instagram को छोड़ रहा हूँ अभी, because यहाँ पे कुछ नहीं रखा है. अब यहाँ पे नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, बहुत ज़्यादा फेक हो चुका है. यहाँ पे अगर कुछ एडवाइस भी तुम लोगे तो सोच समझ कर लेना पड़ता है, बिकॉज कुछ एडवाइस भी देने आएंगे ना, कुछ लाइक मान लो रिलेशनशिप एडवाइस हुआ, कुछ एजुकेशनल हुआ, कुछ भी हुआ, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे दिमाग को खोल के रख के सुनना पड़ेगा, बिकॉज दे विल ट्राई, देयर फर्स्ट मोटिव विल नॉट टू लाइक टू बी रियल, टू एजुकेट यू और एनीथिंग. देयर फर्स्ट मोटिव विल बी प्रोवाइड यू डोपामिन, to be relatable, so that we can feel engaged with them and somehow we will follow them or we will listen to them, because हम relatable feel कर रहे हैं. उनका पहला मकसद ये होगा, और इसके लिए they are not wrong, they have to do it, because उसके बिना तो वो stand out भी नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, रियल एंड रॉ रहने के लिए आई थिंक यूट्यूब इज स्टिल द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बिकॉज यहाँ पे अब भी उतना क्राउड नहीं हुआ है. इट इज़ मोर टफ to actually stand out in YouTube than Instagram. I know that, and we all know that. यहाँ पे views तो तुम्हारे वैसे आएंगे ही नहीं. Like maybe you will get zero views, 5-6 views, and अपने लंबे लंबे वीडियो बनाओगे, इतने अच्छे से एडिट करोगे और बहुत टाइम तक बातें करोगे, and if you get only 10-20 views, that makes no sense. That makes like feel very demotivated. Yeah, but it's okay. I think यहाँ पे तुम रियल एंड रॉ रह सकते हो, और यहाँ पे लोग भी होंगे जो वो भी like people are still real here. People are not fighting for engagement, for population, for like having views, million वैसा लाना है उसके चक्कर में. YouTube is going in a way that ये और ज़्यादा real हो रहा है पहले से, because people used to be very professional here, बहुत ज़्यादा एडिट करते थे. I think YouTube पे लोग और ज़्यादा real हो रहे हैं आजकल, क्योंकि already लोग थक चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं हर जगह से, इतना डोपामिन हिट लेते using AI with that content are becoming much more professional, and that's actually good in a good way, but also we are losing the real authenticity. We need to edit our videos ताकि वो professional लगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, and that actually like new creators के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है. हाँ, प्रोफेशनल्स के लिए ये उतना कुछ भी not a big deal, it's just normal, but for creator like me who are just starting creating, who
बस बीज उगाया गया है, उनको अभी भी ठीक से ग्रो ही नहीं हो पाया, उनको अभी भी वो बच्चे ही हैं। आई थिंक ऐसे लोगों को इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब भी करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट आई एम डिसाइडिंग राइट नाउ। एंड आई थिंक आई विल बी एक्टिवली क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यूट्यूब फ्रॉम नाउ, एंड आई थिंक मैं यहाँ बहुत ज़्यादा रियल हो सकता हूँ। यहाँ पे मुझे लोगों के अटेंशन के लिए इसके चक्कर में वीडियोस नहीं बनाने होंगे, मैं रियल रहूँगा यहाँ पे, और मेरा जो मन होगा जिसमें मैं खुश रह सकता हूँ ऐसे कंटेंट में बनाऊँगा। इतना ही बोलना था। सो या, आई एम कमिंग हियर इन यूट्यूब फ्रॉम नाउ। आई जस्ट सेड समथिंग व्हिच इज not so informative, nothing to learn anything, just a self-talk kind of thing, and I just felt like I must share this before starting here in the YouTube from now with my whole heart and soul. Okay, bye, tata. That's a lemon juice, by the way. Best for summer.